been engaged in several social welfare activities. All training and skill development programs are offered to the beneficiaries free of cost. The foundation has been providing skill development across Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, and Haryana. And it gives me immense pleasure to inform that we have been imparting quality skill training since inception. The development of a quality education system lies largely on the committed trainers, quality infrastructure, supportive administration, large pool of learning resources, and last but not the least, hardworking and brilliant students. You will be glad to hear that Sun Foundation primarily focus on making our students a good human being and also a successful professional through a strategic training, teaching of both theoretical and practical aspects during the course of education. I'm highly encouraged to share that many of our trainees who have emerged after training with flying colors are now accompanying higher promotions in several renowned organizations. They have succeeded in many respects, and I'm very certain that all the current students will also reach the same peak of success. I heartily welcome all the fresher trainers to our center and ensure that we will do everything possible to equip you with the best possible teaching resources, practical exposure, and training method so that you are able to shape your life and career for a challenging world out there. At Sun Foundation, we believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity, and building character. With our students with treasure for their lifetime, additionally, we endeavor to inculcate social values. So let's make a promise today that we will maintain a cordial and a harmonious relationship with each other and make this institution proud by being punctual, disciplined with our hard work. I would like you to become an extraordinary human being in whatever aspect of life you go ahead with. And whatever you do, the only thing what you have to do is you have to do it with whole heart and achieve excellence. So wish you all the luck for your forthcoming training at Sun Foundation. I'm also elated to launch 2 new job roles at World Class Skills Center, Sun Foundation, which is in hospitality, F&B service executive, and BFSI, that is banking finance service sector. And we'll be also launching Each One, Teach One, and Each One Skill One campaign from here today, which you'll be seeing a video in the next half of the session. For the time being, I will request Dr. T.C. Rao to please come over the stage and give us his words of wisdom. He's the man behind the success of Skylar Group. Dr. Rao has a long list of achievements, along with various significant recognitions for Government of India. He served Indian Army for 24 years, and during the tenure was assigned with several key responsibilities. He's an accomplished scholar and earned a lot of laurels and earned post-graduation degree in English, defense, labor studies, industrial relationship, and doctorate in defense studies. And he has written a lot of good books, which we'll be sharing link with you. You can read those books. One of the book, which is personally, I really like, the tagline of that book is From Bunker to Billionaire. He has served in Indian Army for 24 years, started with his own business, and in toll management and highway management, he is the kingpin with that business. So कैसे उन्होंने एक bunker आर्मी की लाइफ से एक बिलियनर की जर्नी को तय करा, must have been through a lot of ups and downs, must have been through a lot of disciplined behavior. So I really request you, sir, please share your insight with us so that we can also, not much, but at least something we can take away from today and make a beautiful and a wonderful career ahead. A big round of applause for sir, please. Thank you. I'm honored that you have joined us on a very last moment. We planned this. Thank you so much, sir, for coming and, enlightening the
event today. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, students. Good, thank you. That is like world-class skill centers students. Respected faculty, the ma'am who has come from the headquarters, Sirat, and you all, very lovable boys and girls. I had been to your center earlier also. आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि इंग्लिश में? हिंदी में ना, बहुत बढ़िया. मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बोलूँगा, हैं? दोनों भाषाओं में. I'll try to make you understand कि what I want to convey. We'll start with, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you very much. Boys and girls, today I am among you. एक दिल में जुनून जगाने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूं. सीरत मैम ने आपको मेरे बारे में बताया. I started my career as a soldier with 10th pass qualification. Keep upgrading myself professionally, educationally, and you'd be glad that I served for 24 years, and in those 24 years, मैं 20 साल student रहा हूँ. इको कर रही यार ये, है ना? हाँ. 20 साल बच्चों मैंने पढ़ाई की है. तो इससे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि learning, gaining knowledge has got no end. Dr. APJ Abdul Kalam rightly said. Sometimes we talk about fail, क्या है, failed in that, I have failed in my life, I have not secured, कुछ कर नहीं पाया मैं जिंदगी के अंदर. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, when you fail sometime, you should not take it as a failure, you should take it that it is first attempt in learning. तो जुनून जगाने का मतलब कि where you are, what you are, you have got lot of potential, आपके अंदर इतनी क्षमता है, but you don't understand what all you can do. महसूस कराऊंगा मैं, I think पहले से थोड़ा सा करंट आपको लगा होगा कि for 24 years service I remained student. 20 साल पढ़ाई की मैंने. Graduation, MA English, MA Military Science, PhD. After PhD again I did 2 qualifications. That is Masters in Labor Studies and PG Diploma in Industrial Relations Personnel Management. एक सैनिक होते हुए जो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है उसकी कैसे टाइम निकाला होगा. That means second teaching that you should get is you should be prepared to do overtime in your life. Overtime right till your end. I am now still studying. This March only I got registered for Doctor of Literature in Sunrise University. I carried my identity card today. I am also a student like you. This is my I-card. March 24 only, I got registered for PhD. After PhD, this is Doctor of Philosophy, the highest education qualification in academics in India. That is Doctor of Literature with Sunrise University, Alwar. Now, the third lesson that you also should make up your mind. आज संकल्प लेके जाओ कि पूरे जीवन पढ़ाई करूंगा. और बच्चों, एजुकेशन ही है जो आपको ऊपर ले जाती है. कोई और शॉर्टकट नहीं है. योर हार्ड वर्क एंड योर एजुकेशन, द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू गेन. आज वर्ल्ड स्किल डे है. आप वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के स्टूडेंट हैं. जो आपके फाउंडर हैं विक्रमजीत सिंह साहनी साहब, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, पद्म श्री भी है. तो यू शुड लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो. कैसे उन्होंने इस जर्नी को यहाँ तक लेके आए हैं. इनकी स्टोरीज पढ़ के वी शुड
गेट सम इंस्पिरेशन, अपना कुछ उस बदलाव करें अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर, और सब कुछ सोच में है बच्चों। 2 पंक्तियां मैं बताऊंगा, उससे आपको सबको महसूस होगा कि छोटे छोटे प्रयास करने से ही बड़ी चीज हासिल करते। जब बड़ी चीज हासिल करते तो धमाका होता है। यू डोंट हैव टू टेल पीपल, पीपल विल कम टू नो ऑटोमेटिकली अबाउट योर अचीवमेंट्स। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को। ध्यान से सुनना ये 4 पंक्ति, लेकिन बहुत दम है इनके अंदर। आप पे भी लागू होती, मेरे पे भी, हम सब पे लागू होती है ये। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जनून जगाना पड़ता है। वो मैं, सीरत मैम, सभी जो आपके सीनियर जो अभी आ जाएंगे स्पीकर्स, दे विल ट्राई टू डू दैट ओनली। दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना ये घोंसला। घोंसला देखा होगा ना आपने। चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपकी लाइफ, छोटे छोटे प्रयास आपके ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, एंड आई एम द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आई गॉट अबाउट 12,000 एम्प्लॉय इन माई कंपनी, 12,000, 4,500 crores turnover per year. We have got presence in 7 countries today. A Fauji who did not know business when he started. 5 जनरेशन मेरी सेना में मैं 5वां था। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, they all served the nation for exactly 200 years. And even then I thought of starting a venture, that is Skylark Group. I have got one market foundation. I am looking after more than 7,000 शहीदों के परिवार पूरे इंडिया के अंदर। 7,000 से ज़्यादा शहीदों के परिवार मेरी टच में हैं और उनकी मदद मैं करता आ रहा हूँ पिछले 24 साल से। एक एनजीओ है मेरी, ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, जिसके तहत मैं आपके बीच में हूँ आज। युवाओं को मोटिवेट करना, युवाओं का कैरियर काउंसलिंग करना, युवाओं को बताना कि कैसे अपना ग्रेड इंप्रूव कर सकते हैं, वो मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हैं। तो मेरे जो लेक्चर, मेरे ख्याल से आज 400 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में मैं अभी तक जा चुका हूँ। बहुत टाइम दिया है मैंने, और ऐसे आप जैसे बच्चों को मैंने एड्रेस करके उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया है, उनके दिल में जुनून जगाया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाउ आई विल मेक 5 स्टेटमेंट दैट यू हैव टू मेक टू योरसेल्फ एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। Believe me, if you practice it for 15 days, 15 दिन सुबह घर से चल करके जब वर्ल्ड क्लास सेंटर में पहुंचते हो आप हरिनगर में, रास्ते में एक दो बार अपने आप से कहो उन बातों को, स्पीक टू योर सेल्फ कि आई एम द बेस्ट इन दिस यूनिवर्स, आई हैव गॉट नो रिप्लेसमेंट, नोबडी कैन रिप्लेस मी, नोबडी इज एज आई एम। ये आपने सोचना है, और मैं प्रूव कर दूंगा कि आप कहोगे उस बच्चे को बुला के यहां पे कि यस ही इज द बेस्ट। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पीक टू योर सेल्फ दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू शुड, आई डोंट नो what you had in your mind by the time you entered this auditorium, but when you leave this auditorium, कुछ संकल्प लेकर के जाओ यहां से। आज जो ऑर्गेनाइज किया है आज के लिए प्रोग्राम, ये आपको एंथ्यूज करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम यहाँ पे आज किया है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ इज दैट आई एम द बेस्ट। सेकंड, आई कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन डू इट, आई कैन। Third thing, that today is my day. Believe me, today is my day, your day, your day, your day, your day. And you should not allow anybody, any institution,
any organization to disturb you. The way you want to manage your day, you should not waste a single minute. This is very valuable for you till such time you get into some business, get into some profession, or at least those who are unmarried, you get married. Till such time आप लोगों को एक एक मिनट मैनेज करना है. मैनेज का मतलब don't allow anyone to accompany you who cannot run with you, who cannot walk with you, who cannot make up his standard to your standard. Don't carry जो आपके जो आलतू फालतू के दोस्त हैं ना जिन्होंने टाइम खराब करना है आपका, उनको एक एक करके साइलेंटली दूर करते जाओ. Apply rocket technology in your life. Rocket technology means when rocket starts, it takes off. It has got a lot of payload because at certain stage he requires. Thereafter that requirement is over, he leaves that, discharges that, and that fall on the ground. Similarly, it's applicable to you also. आप भी जो आलतू फालतू के दोस्त हैं, सिंपल सी बात है, भिखारी के साथ रहोगे, भिखारी की टेक्निक सीखोगे. स्किल सीखने के लिए आप यहां पे आए हो, और स्किल के साथ में पैशन को मिक्स कर दो. स्किल एंड पैशन, दैट मेक्स यू परफेक्ट मैन. आपके प्रोडक्शन, आपका आउटपुट एकदम बदली हो जाएगा. तो वर्ल्ड स्किल डे पे आज हम बात कर रहे हैं कि टुडे इज योर डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज, टुडे इज. तो these three things. Now you should always remember that God is always with you. भगवान आपके चारों तरफ है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, हर जगह मौजूद है. तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बुरी आदतों से बचाएगा, ये गलती करने से बचाएगा. आप सोचेंगे मेरा इंस्ट्रक्टर, मेरा टीचर, मेरे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, छोटे मोटे कुछ गलती कर चुपचाप कर दिया यार, कौन पूछ रहा है. नहीं, ही इज ऑब्जर्विंग यू राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर, राउंड द वीक, राउंड द मंथ. उससे आप नहीं छुप सकते. बिलीव मी, इसी जीवन के अंदर बही खाता बना जा रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा इसी जीवन के अंदर ही. इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, ही इज यूजिंग रेड पेन. हु? गॉड. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ब्लैक पेन से लिख रहा है आपके लिए, वो लेजर तैयार हो रहा है. दोस्तों, आपने हर मिनट में सोचना है कि यार भगवान देख रहा है भाई, और कोई नहीं देख रहा. तो ये जरूर आपने ध्यान रखना है, आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप अपने मिशन में कामयाब होंगे. अगर ये चार चीज, फर्स्ट आई अगेन रिपीट, मेरे साथ आप भी रिपीट करोगे. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे. Then God is always with me. God is, God is. If you speak those words to yourself every day in the morning, जब घर से चलते हो आप, फ्रेश हो बिल्कुल, दिमाग में कोई उल्टी सुलटे विचार नहीं है, आप अपने आप से कहो ये चारों बातें, और बिलीव मी, इनका बाय प्रोडक्ट क्या है? यू आर दी विनर, यू आर दी, यू आर दी, you are the. These 5 things you have to speak to yourself every day to yourself. अब बात आती है आपकी स्किल की, आपके करियर की, आपके पर्सनल बिहेवियर की. 3-4 चीजें जो आपने हमेशा अवॉइड करानी है. पहली चीज, सबसे पहली चीज, आपने कंपेयर नहीं करना आपको किसी से. अपने पेरेंट्स को किसी के दूसरे के पेरेंट्स से कंपेयर नहीं करना, अपने टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर नहीं करना है. स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर टीचर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर पेरेंट्स. कंपेयर योर परफॉर्मेंस
with your performance only. Last year I did this year I have made up my mind कि मैं इतना अच्छा स्कोर लूंगा ही लूंगा. First thing. Secondly, criticism. We generally, I had also been through this life which you are today. हम लोग क्रीब करते रहते हैं, मेरा वो टीचर ठीक नहीं, यार हमारा स्किल सेंटर ठीक नहीं है, उसमें वो है, उसमें वो है, उसमें वो. क्रिटिसाइज मत करो. जिंदगी में क्रिटिसिज्म अपनी डिक्शनरी से निकाल दो. एंड डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जो हो गया उस पर कभी भी पछतावा मत करो. हो गया वो हो गया. यू कैनॉट चेंज दैट बिकॉज पास्ट इज ए वेस्ट पेपर. Nobody has improved his past. Yes, you are there. Today is your day. As I said, आज के दिन आप कुछ संकल्प ले सकते हैं, आज से अपना रूटीन चेंज कर सकते हैं. That is your present. Try to live in the present. Present is a newspaper. Whatever you do today, it will become news tomorrow. And future के लिए चिंता मत करिए, तैयारी करिए. Don't worry about future, but prepare for future. Because future is a question paper. Nobody knows what will happen tomorrow. I also do not know the next moment what will happen. Dr. APJ Abdul Kalam, while talking to students like you in Guwahati, he collapsed. He didn't know that he won't be able to complete his lecture. We see a lot of cases in our family, गांव में, अपने आस पड़ोस में देखते रहते हैं. तो फ्यूचर के लिए डोंट वरी बट प्रिपेयर. ये अगर आप ध्यान में रखोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आज आप स्किल सीख रहे हैं. बिलीव मी कि कोई स्किल से, जब सीरत मैम ने बताया कि आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, 3 अभी आपके यहाँ पे और कोर्स शुरू किए हैं. I have seen one gentleman who is very known to us, his family. He is from Jaipur. His father was a cook in Aram, that is the five-star hotel in Jaipur. Ambag. Rambag naam, Rambag na? Rambag. रामबाग होटल में वो कुक था और आज उसके अपने 3 5-स्टार होटल हैं. एक जैसलमेर में है और 2 जयपुर के अंदर हैं और मल्टीपल बिजनेस हैं उसके, उस इंसान के. तो दोज हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एक्वायरिंग स्किल व्हाटएवर इट इज, इफ ए गर्ल इज डूइंग ब्यूटिशियंस कोर्स, she can make her own product in days to come, provided she takes some hard decisions today. Yes, and start working on those lines, start acquiring knowledge which are required for an entrepreneur. In addition to skill, you require some management knowledge also, कि how to grow your company. मैं इस पे मेरी बुक आ रही है, इस पे एंटरप्रेन्योर मंत्रा, आई थिंक 1 महीने में आ जाएगी मार्केट में. एक बुक मैं अभी लेके आया हूँ, आई विल जस्ट प्रेजेंटिंग टू सीरत मैम, दैट इज सक्सेस गारंटीड. आई रिटन ए बुक ऑन सक्सेस गारंटीड. इफ यू रीड दैट, फॉलो दैट, if you practice those points which I have given in that book, you will become a successful person. Nobody can stop it. Only what is required is goal setting. You set your goal today only, Gila, after 5 years, I'll be having my own business, a small shop or whatever. If somebody is learning some solar energy equipments technology, IT, computer, whatever you are, a plumber, whatever skill you are acquiring, think of going to the top step in that particular field. And believe me, not difficult. One should not feel कि नहीं यार कहाँ कर पाएंगे. आप गूगल पे जाके देखो और आप सर्च करो. आज अपना ही डालो, हिंदी में ही बोलो आप उसके अंदर कि एक
कितने प्लम्बर हैं दुनिया के अंदर जिनका आज अपना इंडस्ट्री है, प्लम्बरी का सामान बनाते हैं, जो खास करके सैनिटरी वेयर्स बनाते हैं, जो देखो आपको मिल जाएंगे। बिकॉज उन्होंने गोल सेट किया, फिर फोकस किया उसी के ऊपर। आफ्टर सेटिंग योर गोल देन यू हैव टू बी टोटली फोकस्ड। लेफ्ट राइट सोच रहे नहीं कुछ भी आए। एंड हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। You should stop observing holidays till such time you achieve your goal. वो बोलते हैं सपने नींद में नहीं आते, सपने वो जो आपको नींद ही नहीं आने दे। Who stops you taking big dreams? If you have some dream in your life, बहुत सुंदर पंक्तियां इसके ऊपर किसी ने कही है, जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, मत भागो तुम। क्योंकि बगैर किए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये 4 लाइन बहुत कुछ अपने अंदर समेट के रखी हुई हैं। कोशिश करने वाला आदमी कभी फेल नहीं हुआ है, वो कामयाब हुआ है। थॉमस एडिसन ट्राइड 999 times to produce a bulb. What made him? What motivated him? Only one thing, because he has decided that he can do it and will do it. What he learned in 999 attempts is कि किस कारण बल्ब नहीं बनता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में हुए हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया और आज उनका बिजनेस आसान छू रहा है। सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट टेस्ट मैच था। वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा था, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था। बॉल आई, ठक उसके यहां लगी, गिर गया। डॉक्टर आए, स्ट्रेचर आई, डाला स्ट्रेचर के ऊपर, बाहर लेके जा रहे थे। देन ही रियलाइज्ड कि सचिन तू आज बाहर चलेगा ग्राउंड से तो तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। ही सेड कि नहीं, हम खेलेगा। डॉक्टर हम खेलेगा। और उसी दिन उसी ने उसी ग्राउंड पे सेंचुरी बनाई थी, फर्स्ट सेंचुरी। ऐसे ऐसे 1000 एग्जाम्पल हमारे देश में मिल जाएंगे जिन्होंने कोशिश की, और वो कहाँ हैं आज? सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। तो आपके पास में सब कुछ है, पूरी दुनिया आपके सामने है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, किसी भी सीढ़ी पे आप पहुंच सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप गोल सेट करके, फोकस करके, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी मेंटेन करो आप, और आपकी सफलता आपके पैर छुएगी जहां भी आप जाओगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। सेना के अंदर कोई समय नहीं रहता पढ़ने के लिए कि साहब मैंने फॉर्म भर रखे, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को स्पेयर कर दो। नो, कौन करेगा आपकी ड्यूटी वहां? लेकिन ओवर टाइम ड्यूटी करने के बाद में आए, फील्ड एरियाज में लाइट नहीं होती थी, लालटेन जलाई अपनी, और तब पढ़ाई की। किसी में हिम्मत नहीं दी मुझे कोई रोक सकता। अपग्रेडेशन किया, सोल्जर से क्लर्क बना, क्लर्क से स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर से फॉरेन कंट्री गया, इंडियन एम्बेसी में वापिस आया, कमीशन लिया, और कमीशन लिया उस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए बाहर बहुत कुछ है, कि वहां पे सैचुरेशन था। ऑफिसर बन गया, कर्नल बन जाता, ब्रिगेडियर बन जाता। मेजर से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, ये कहते हुए अपने कमांडिंग ऑफिसर को कि मैं समाज सेवा करूंगा, आई वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी। ही आस्क्ड मी कि यू नीड मनी फॉर सोशल वर्क। आई सेड कि आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी। माय सन ज्वाइन मर्चेंट नेवी,
the elder one, when he was going for the training, I stopped him, don't go. He said, Daddy, I'll get lot of salary in Merchant Navy. मैं उसके 5 दिन बाद में रिटायर हुआ था. 10 July 2000 he joined the training and I left army on 15 July after 5 days. 5 दिन पहले मैंने उससे कह दिया था कि पैसे के लिए तुम्हें मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इतना पैसा कमा दूंगा मैं. ये कॉन्फिडेंस था. कॉन्फिडेंस कैसे आया? एजुकेशन से. कॉन्फिडेंस कैसे आया? हार्ड वर्क से, ओवर टाइम से. ओवर टाइम क्या, लाइफ भर कि यार और मेहनत करेंगे, 20 घंटे काम करेंगे, देखते हैं कैसे कामयाब नहीं होते हैं. तो व्हाट यू रिक्वायर टुडे इज टू सेट योर गोल. आज को संकल्प लेके जाओ यहां से कि जिंदगी मैं इसको आसानी से नहीं गुजरने दूंगा. ये मेरे बेटे की बड़ाई होगी अगर मैं कहूँगा तो. वो बोलता डैडी एक लाइफ मिली है. उसके बाद मैं आर्मी में गया, वो एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2 महीना ट्रेनिंग की, वहाँ से रिजाइन करके खुद आ गया. मर्चेंट नेवी में नहीं भेजना चाह रहा था. ही डिसाइडेड टू कम बैक एट हिज ओन. लेकिन एनडीए में ही सेड कि डैडी एक जीवन मिला है, आई वांट टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट. उस टाइम बच्चे आप भी सिग्निफिकेंट कोई रैंक कर उसको कोई देशभक्ति हो, कोई नहीं सिग्निफिकेंट समझते आप लोग. आप क्या समझते हो कि पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं. उसके दिमाग में भी यही था. तो ये उसके दिमाग में भी था कि बड़ा आदमी बनूं मैं. और अब भी कहता है कि डैडी मेरे जीवन के इतने घंटे बचे हैं. एवरेज एज निकाल के, माय पॉइंट इज कि ही इज काउंटिंग हिज आवर्स, ही इज काउंटिंग हिज डेज कि आज मैंने क्या किया, आज मैं क्या नहीं किया. नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आप भी सोच सकते हो, कर सकते हो. एक एक दिन को, जैसे मैंने कहा कि हर दिन आपका है, आप उस दिन को अच्छा भी गुजार सकते हो, उसको वेस्ट भी कर सकते हो यार दोस्तों बैठ करके. सेम मेरे साथ में आज भी मैं 16 घंटे काम करता हूं, 16 आवर्स. ऑफिस में 8 घंटे. होमवर्क लेके जाता हूं, मैं अपने सेक्रेटरी को बोलता हूं मेरा होमवर्क दो आज का. होमवर्क मींस मेरे ड्राफ्ट दो मेरी बुक्स के. 24 साल फौज से आए हुए हो गए, 27 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं. अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन फॉर माय कंपनी टू रेज माय बिजनेस टू दैट लेवल. आई हैव सीन प्रैक्टिकली, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग. आपको वही बात बता रहा हूं जो संभव है और जो मैंने करके देखी है. एक नॉर्मल बच्चा हूं मैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं था. मैं सैनिक परिवार से था, लेकिन यस मैंने बताया ओवर टाइम किया 7 साल की उम्र से ही. द फर्स्ट जॉब आई डिड फॉर 7 रुपीज पर डे ऑन डेली वेजेस बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम. 11वीं पास करने के बाद में फौज में जाने का कुछ बीच में टाइम था, तो इस टाइम में क्या करूं मैं, वेस्ट नहीं किया. गांव के नज़दीक कोई नहर बन रही थी, वहाँ काम किया. 7 रुपये पर डे के मिलते थे. तो ये है दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है. मेरी एक कैरियर मंत्र बुक भी मैं दे के जाऊँगा आपके कॉलेज में. मैंने कैरियर मंत्र 2012 में लिखी थी. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका इनोग्रेशन किया था, लोकार्पण किया था उस बुक का मेरी का. अब एक और बुक लिखी है मैंने, जीवन मंत्र, विजय मंत्र. जीवन मंत्र इज अंडर पब्लिकेशन, दैट इज विजय मंत्र. मौका मिले आप जरूर, मैं 1 कॉपी 2 कॉपी 5 कॉपी दे दूंगा आपकी लाइब्रेरी में. उस बुक के अंदर आपके लिए बहुत ऑप्शंस है जीवन में. कैसे बड़े बने हुए, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज, उस बुक के अंदर सब कुछ है. बच्चा जब गर्भ में होता है तब से मॉनिटर करती हो किताब मेरी बच्चे को, उसके पूरे कैरियर को. पेरेंट्स के लिए गाइडेंस, नर्सरी स्कूल अगर बच्चे का चूज करना है क्या क्या देखेंगे उसमें, 10th के बाद में क्या सब्जेक्ट दिलवाएंगे बच्चों को, +2 के बाद में क्या कोर्स करें बच्चे ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए.
अनएम्प्लॉयड ना रहे। ये सब मैंने उस बुक में दे रखा है। अपनी बेटी को संस्कार दे, अच्छी बहू बनने के लिए आगे जाकर के वो प्रूव करे, बेटे को तैयार करे वो, ताकि वो बाहर दूसरी लड़की घर में आती है उसका कैसे मान सम्मान करे। ये सब कुछ है। डिवोर्स के केसेस कैसे जो हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, और एक देशभक्ति की भावना बच्चों में कैसी डाली जाए। लास्ट में मेरी उम्र में पहुंच करके अपने परिवार को खुश कैसे रखा जाए, यूनाइटेड कैसे रखा जाए। 2 भाई है तो 3 भाई है, 1 भाई 2 बहनें, तो उनको आपस में मन मुटाव कैसे हटाया जाए, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, वो उस विजय मंत्र के अंदर है। तो दूसरा मेरा 5 मिनट में लूंगा आपका, हाउ टू इम्प्रूव ग्रेड। द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी, लगातार, ये नहीं कि एक हफ्ता पढ़ लिए फिर एक हफ्ता घूमने के लिए चले गए, फिर 3rd वीक में आप आओगे यार इस हफ्ते नहीं कल करेंगे यार अगले हफ्ते शुरू करेंगे, नहीं। एवरी डे काउंट्स, एवरी डे इज वैल्यूएबल फॉर यू। उसका ऑडिट करो अपने आप कि आपने पिछले महीने कितने वेस्ट किया टाइम, कितना आपने यूटिलाइज किया। ये आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपना ग्रेड इंप्रूव कर सको। ग्रेड ये नहीं कि पढ़ाई में नंबर का ही, ग्रेड में अपने अपने आप को पर्सनली डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, एटिकेट, सारे बहुत कुछ है इसके अंदर। अपनी स्पीकिंग पावर, आप अपने जैसे हम लोग सब नॉर्थ इंडिया के हिंदी में ज़्यादा वो करते हैं। बिलीव मी, स्टार्ट करो। मैं भी कोई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हूँ, आप तो फिर बेटर उसके हैं। आप अभी से ही अपने आप पे ध्यान, ग्रूमिंग पे ध्यान दो। आप ग्रूमिंग में स्पोकन लैंग्वेज भी आती, जो आपकी हिंदी हो थोड़ी बहुत रिफाइंड हो, और साथ साथ इंग्लिश की तैयारी करो। बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर आज हर जगह प्राइवेट सेक्टर में जाओगे प्रायोरिटी दी जाती है जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान दो। घर में टाइम टेबल बनाओ अपना। अब जैसे कुछ भी कोर्स कर रहे हैं आप, उस कोर्स की डेप्थ तक जाओगे तभी जा पाओगे जब स्कूल में जो पढ़ा घर में जाके उसका अभ्यास करोगे, पढ़ोगे। टाइम टेबल बनाओ आप। अगर क्लास में आपके टाइम टेबल बना हुआ है स्कूल में, आपके इंस्टीट्यूशन में, तो आपने घर का भी टाइम टेबल बनाना है। टेबल चेयर का इस्तेमाल करो। पढ़ते हुए बिस्तर पे लेट के पढ़ना छोड़ दो। जो बच्चे +2 है, जो बच्चे आगे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद में बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, CGL के हैं, बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, उनकी तैयारी करो, जुट जाओ। अगर स्कूल में आपको 4 या 5 घंटे पढ़ाते हैं इंस्ट्रक्टर, आपकी 5 से 6 घंटे घर में एवरेज आनी चाहिए, अगर वास्तव में जीवन में आपने कुछ करना है तो। ये सारी बातें हैं। कैसे अपना ग्रेड को इम्प्रूव करो, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करो। अब बात आ जाती है आपके प्रोफेशन के, आपके करियर की, कैसे आगे जाकर के आपने क्या करना है। आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। मैं किताब दूंगा आपको, मैं टिप्स दूंगा कैसे कंपनी खोलनी, कैसे क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। बिकॉज आपके पास में हुनर है, आपके पास स्किल है, उस फील्ड की स्किल को आप कंप्लीटली एक्वायर करो। लापरवाही मत करो। यार क्या फर्क पड़ता है यार, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, नो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर आप। यू हैव टू लर्न दी ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, जो आपका जो आज कर रहे हैं आप यहाँ पे, स्किल जो एक्वायर कर रहे हैं, उसको इंटेंसली उसके अंदर घुस करके आप उसकी सब माइनर मेजर सब चीजें स्टडी करो। आगे के बारे में सोचो, फिर सोचना शुरू कर दो अभी से ही कि आपने अपनी इंडस्ट्री लगानी है। बिलीव मी, 5, 7, 10 साल में छोटी सी शुरुआत करो, आपकी अपनी इंडस्ट्री होगी। बिकॉज आपके पास में स्किल है, हुनर है आपके पास में। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आज वर्ल्ड स्किल डे के ऊपर। और आपके सानी साहब का धन्यवाद करता हूं, आपके मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी।
to just talk to you, to discuss certain things about you only. ऐसे ही आता रहूँगा, पहले भी एक बार आया 2 साल पहले में. कोई भी बच्चे को किसी भी फील्ड की गाइडेंस चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा. आप व्हाट्सएप करके मेरे पास में आप पूछोगे तो अच्छा रहेगा. हो सकता है कॉल आपकी मैं ना उठा पाऊँ. आई गॉट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. तो मैं लेकिन आपकी मदद करूँगा. जिस भी बच्चे के पास आज तक मिला हूँ मैं उनको एक वर्ड दे के आता हूँ कि मैं आपके लिए एक सलाहकार के रूप में हमेशा मौजूद रहूँगा, जिस भी फील्ड में आपने सलाह लेनी हो. नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ सीरियसली यू टेक मी, कि वेदर आई एम टेलिंग यू समथिंग यूजफुल, वेदर आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू सम टिप्स फॉर योर करियर, फॉर योर business, for your profession, for your personal grooming. That is up to you. Thank you very much. Thank you, Sirat ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. एक बार फिर जाने से पहले वही भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you so much. So we'll be launching a campaign which will say each one skill one. So आज हम एक यहाँ से, जैसे आपने संकल्प बताया, हम सब एक संकल्प लेके जाएंगे कि आप आगे किसी की और मदद करेंगे कि वो भी एक स्किल एक्वायर करे और अपनी लाइफ को बेटर करे. जिसमें आप बस ये करेंगे कि आप उनको आप सन फाउंडेशन का एड्रेस देंगे या फ्लायर देंगे और आप उन्हें काउंसिल करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, so that we can start the campaign together. It is each one, skill one. So I like the AV to please play that, and it will be inaugurated by Sir, which will be wonderful. A big round of applause for the campaign, each one, skill one. क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये करने से हमें क्या मिलेगा. आजकल हम सब की एज अ ह्यूमन हम हमेशा हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा ये एक क्वेश्चन है. तो इसका एक छोटा सा मैं आपको आंसर देना चाहूँगा. एक सॉन्ग है जुबिन नौटियाल का, नारायण मिल जाएगा. उसमें एक बहुत खूबसूरत सी एक लाइन है, वो मैं कुछ आपके सामने पेश करना चाहूँगा. तो कुछ यूँ है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं. नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं. औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं. तो ये सब आप लोगों के लिए है. अगर आप लोग किसी की मदद करेंगे तो आप लोगों के भी हाथ ऐसे ही महकेंगे. ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम किसी को बता देंगे वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा. ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. ठीक है, तो और अभी हमारे राव साहब भी कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ऑनेस्टी के ऊपर, तो उसमें भी मेरे को कुछ याद आ रहा था. मैं सोच रहा था वो भी आपके सामने बोल देता हूँ. तो एक वीडियो थी, पता नहीं एक प्ले था क्या था, तो उसमें यह था कि एक रेलवे स्टेशन में जो स्लीपर कोच होता है, अपर लोअर और मिडल वाला, उसमें जब एक भिखारी आया भीख मांगने, वो अंधा था. तो उसने जो ऊपर बैठा था सबसे, उसने कुछ पैसा नीचे वाले को पास किया, उसने नीचे वाले को पास किया, फिर उसने भिखारी को दिया जो अंधा था. तो उसने फिर बाद में दुआएं दी कि भगवान आपको खुश रखे. जो नीचे बैठा था उसको दुआएं दी. फिर क्या हुआ कि उसने बोला अरे भाई साहब ये मैंने नहीं दिया है, ये जो ऊपर बैठा है ना उसने दिया है. तो फिर जो भिखारी था, जो अंधा था, उसने बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दिया कि अंधा मैं हूँ साहब, ऊपर वाला नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है, उसे सब पता है कौन किसकी मदद कर रहा है. ठीक है, तो ये एक कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. एंड सेकेंडली, सानी सर के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं. ठीक है, उनका भी मैंने आई थिंक 1 साल हो गया है. 1 साल में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया था. इंस्टाग्राम की पोस्ट भले ही 24 घंटे बाद हट जाती है, लेकिन 1 साल बाद भी मुझे वो एज इट इज़ याद है. तो उस पोस्ट में ये लिखा था कि अगर आप किसी को 1000 रुपये की मदद करते हैं तो शायद उसका एक दिन निकल सकता है. आप किसी की 10,000 दे के मदद करते हैं, शायद उसका 1 महीना निकल सकता है. आप किसी को 1 लाख रुपए देते हैं तो हो सकता है उसका 1 साल निकल जाए. लेकिन अगर आप किसी को कोई कमाने की स्किल सिखा देते हैं तो वो अपनी पूरी जिंदगी भर बैठ के उस स्किल के बेसिस पे वो खा सकता है.
आराम से। तो तो यही हमारा एक इनिशिएटिव है, ईच वन स्किल वन। तो आप में से हर एक जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, 500 का ऑडिटोरियम है यहाँ पे, तो मैं सपोज करके चलो 500, तो आप एक जना दो की भी हेल्प करेंगे ना, तो भी बहुत है। तो आप आज यहाँ से जाएंगे तो एक प्रण लेके जाओ कि मुझे 2 लोगों की हेल्प करनी है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कोई आसपास आपको बातचीत करता हुआ दिख गया, कॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आपने उनको हमारे सेंटर के बारे में बता दिया, कुछ भी हो सकता है। जनरल कोई बस में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी 2 लोगों की आप मदद कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, मेक श्योर कि आप लोग 2 लोगों की मदद जरूर करें। हमारे सेंटर के बारे में बताएं, जितने कोर्सेज हैं, कोर्सेज के बारे में मैं बता दूंगा, जो कुछ न्यू है, जो बाहर से आए हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर सत्यकाम गोस्वामी, and he is having over 30 years of experience in the field of technology. He will talk some about the new skills, and जैसा कि हम स्किल इंडिया के आज 10 साल आज पूरे हो चुके हैं, तो वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ओवर टू यू सर। To welcome you. Thanks a lot. It means a lot. I'm sure we'll be really enlightened by whatever you're going to tell us. Thank you so much for coming. सो वी वेलकम यू सर। आप यहाँ पे आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करेंगे स्किल सीखने पे, टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेरीज होते हैं, आप इन सब की जो डाउट हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। और इनको 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं इनको एक पाइथन के मीटअप पे मिला था, तो वहाँ से हम लोग कनेक्ट हुए थे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड ओवर टू यू सर, दिस इज़ फॉर यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बहुत ही अच्छा एक सेशन रहा टीएस राव सर के साथ, और कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मज़ा आया ना? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी लेफ्ट ऑफ। आई विल आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, यू नो, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, हिंदी एंड इंग्लिश। सो आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट आई विल ट्राई टू mix and match between these 2 languages, okay? So let's start with the World Skill Day. Why do we celebrate this, and what is the importance of that, and what does it mean to be in this life, you know? If you take my example, just like T.S. Rao sir, I'd like to speak about that and give you an example. Like, you know, even I come from a very, very, you know, humble background of Fauji's and all. I was about to join Fauj, but I couldn't. I just chose my path of journey, the so-called, you know, the things which I liked most, you know, the computers. बट आज मैं ओनली कंप्यूटर्स के बारे में नहीं बोलूँगा, जनरली मैं स्किल डेवलपमेंट और कैसे मैंने सीखा है उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज आई थिंक आई हैव बिकम दैट एक्सपर्ट इन द फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट पीपल कम टू मी to get an advice as mentor, coach, guide, and as well as a lot of times in the personal matters they try to get advice from me. And in the same thing, I also get paid highly from the large corporate companies, the same skill, you know, which I go and talk to people like this in public with nothing, you know, with zero cost, and the same skill with I have developed communities, large developer communities. Developer software के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक ही स्किल है, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. स्किल इज़ लाइक ए वेरी वेरी जेनरिक टर्म, वेरी बिग टर्म. आई थिंक मैं उनको 2 भागों में बांटता हूँ कि यू नो जैसे इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ओके, मैं भी अभी भी सीखता रहता हूँ राव सर की तरह. कुछ ना कुछ नया रोज़ पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठना है, अपना पढ़ना है, कुछ सीखना है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना है. सत्संग बोलते हैं जैसे, जो हम लोग बोलते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल सत्संग, यू नो, समथिंग लाइक दैट. So why do we do this? Because the world is moving at such a fast pace, especially in our field, you know, technology field. It's very difficult to keep
keep ourselves abreast, you know. When abreast means, you know, keep up with it, you know. जब तक हम सोचेंगे ऑलरेडी किसी और ने कर चुके होंगे और कर रहे होंगे, एंड स्पेशली टुडेज डे विथ सच एन इम्पॉर्टेंट डे टॉकिंग अबाउट स्किल्स. सो दो तरह की स्किल्स होती हैं, जैसे एक लाइफ लॉन्ग स्किल्स होती हैं, जैसे साइकिल चलाना है, स्विमिंग करना है, राइट. यू हैव टू वांट टू प्ले सम म्यूजिक, यू नो, दीज आर ऑल स्किल्स, राइट. So these are must haves, you know, no matter where you go, what you do, you know. So this is must have. But what has happened to the world, you know, the businesses have not changed. मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, businesses कोई कुछ नहीं बदले हैं, सारे same rules वही हैं, एक नया परत चढ़ गया है. I call it the old wine in a new bottle kind of a thing, you know. Nothing has changed. Same value systems हैं. People only trust people whom they can trust with and build confidence and do business with. जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फर्स्ट चीज़ मैं हमारे जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको वही सिखाता हूँ कि भाई पहले जैसे आप जाओगे, सबसे पहली स्किल है सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल इज़ नथिंग बट हाउ यू कम्युनिकेट एंड शेयर योर आइडियाज़, राइट. लाइक वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू नो, दोज हैव टू बी वेरी वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड. इंटरव्यू बाद में आएगा, पहले सीखोगे कैसे. सबसे पहले जैसे आप स्कूल कॉलेज टीचर के साथ जाते हैं या अपने प्रोग्राम में आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, सो मैं सबसे पहले मेरी क्लास जो शुरू होती है, आई टीच हाउ पीपल शुड आस्क क्वेश्चंस, यू नो, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. पीपल स्टिल डोंट नो, दे डोंट नो हाउ टू present themselves in a very clear form. So how did I get into this, you know? That is a very interesting story which I would like to share with you. I come from a background known as free and open source software developers. आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है ना? हाँ, तो वो सारे हमारे जैसे लोगों ने बिल्ड किया है, यू नो. इट डिड नॉट कम फ्रॉम समवेयर एल्स, यू नो. एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड द प्रोप्राइटरी सिस्टम्स इज़, जैसे आपको सर ने एग्जांपल दिया था कार के बारे में, अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, मुझे गाड़ी के सारे पार्ट्स पुर्जे पता होने चाहिए. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको वो फ्रीडम देता है कि आप एवरी पार्ट को खोल के, सॉफ्टवेयर को खोल के सीख सकते हो कैसे ये आर्किटेक्ट हुआ है, कैसे बना है. तभी आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हो, राइट. जैसे आप गाड़ी के पुर्जों को खोल के बन सकते हो, तो ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, दिखा सकता हूँ चाहूँ तो कैसे कैसे वो जर्नी में हमने आगे आगे बढ़े हैं. तो जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, तो द फर्स्ट थिंग वाज कि वही सारी चीज़ें कि भाई एजुकेशन कैसे करेंगे, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कहाँ जाएंगे. तो ये मुझे एक कम्युनिटी मिली जिसे बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंपनी, जस्ट लाइक दिस कम्युनिटी वेयर एवरी द नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and your meritocracy will win you, you know, in the sense of if you can express yourself in some form, you will be acknowledged and given that credit, and you will get to do things. So ye software company, in fact I call that one of the best democracies in this world, because we were all living the dream, you know. Initial stages में कोई नहीं जानता था लिनक्स, ओपन सोर्स, ये सारी चीज़ों को. तो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में मिलते थे, राइट. And what started slowly as growing together, learning together, ये माउस नहीं चल रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना, छोटी छोटी चीज़ें थी. सो अगेन दैट स्टेप मिस्टर राव कवर्ड, राइट. डू स्मॉल थिंग, वन थिंग एट ए टाइम. मैंने वेरी वेरी छोटी छोटी चीज़ों से वो बढ़ते 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 नॉलेज इतना बढ़ गया है कि आज की डेट में मेरे पास बड़े बड़े CEO CTOs आते हैं, PhD के स्टूडेंट्स आते हैं फॉर गाइडेंस फ्रॉम US, अब्रॉड, एवरीवेयर, बिकॉज दे हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ थिंग्स, द जर्नी विच वी हैव गॉन थ्रू, राइट. द लो लेवल से लेकर ऊपर तक बिल्कुल सारे स्टैक्स में, है ना. So I was talking about soft skills. So what has happened to me with this community is today I'm going to specifically talk about how you can develop those skills in open. What do I mean by open is, आज की डेट में सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि इतना नॉइज़ है कि लोग बोलते हैं अरे वो ये कर रहा है. अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, पहले अपने आप को देखो, राइट. फॉरगेट अबाउट एवरीवन एल्स. एज मिस्टर राव सेड, सेटिंग गोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे क्या करना है, दुनिया जाए भाड़ में. बी लेज़र फोकस्ड. जैसे अर्जुन की आना था ना, मतलब उनकी आँख पे मतलब है ना, तो दैट इज़ वॉट द इंटेंशन शुड बी, यू नो.
And that only comes with discipline. Thankfully, I come from again a background of Fauji's, so that was there. सेकेंड थिंग, सॉफ्ट स्किल्स आ गई हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रोज़ कुछ कुछ, लेकिन हमें लगता है कि हमें ये ड्रीम को चेस करना है, ये करना है. सब जरूरी नहीं है कि सारे एंटरप्रेन्योर बने, सारे प्रोग्रामर बने. लाइक व्हाट इज़ दैट यू वांट टू डू इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट यू हैव टू कंसिडर एंड फोकस ऑन. The way I have learned is you have to publicly announce in the social media. I'm telling you again, like it's like a promise in public, and say that I'm going to learn this skill in next 3 months, 6 months, whatever it is. It's like a promise, you know. So learn in public. That is what one of the big lessons I have learned in open source. Like when you go and interact with people from across the world, you know, आपने कभी मिले नहीं है, लेकिन आप बोलते वाह ये ऐसे कैसे सोच सकता है. Right? People from all parts of the world, right? Chinese, Indians, अपने पाकिस्तानी भाई, श्रीलंकन भाई, सारे लोग, मतलब सबका सोचने का ढंग अलग है. So what did I learn from this community? Again, second skill. Culturally, socially, how do we interact with people? And in a very large group, you know, and when I started doing this, I started with, okay, ठीक है, मैंने तो ये कर लिया, अब क्या करूँ? ठीक है, let me organize people. So that is where we founded our first Linux user group in Hyderabad. I come from Hyderabad, okay. तो वहाँ पे किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, बड़े बड़े इवेंट्स किए, उसमें बहुत कुछ मज़ा आने लगा. तो मुझे तब so again that is also very very important. Find that purpose, you know. The purpose जो बोलते हैं ना, वो समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत फास्ट मूव करना है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. अगर आपको लगता है कि ये टाइम फ्रेम में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मूव ऑन. ज़िंदगी बहुत लंबी है. इट्स लाइक ए मैराथन, यू नो. इट्स नॉट ए स्प्रिंट कि भाई आज मैं 100 मीटर भाग लिया और बस मैं जीत गया. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is very, very long. It takes a lifetime to achieve one's dream. I haven't still reached my dream, जो मैंने 30 साल पहले सोचा था. I imagined of a world where people can sit below a tree, program, you know, वो आज हो रहा है अभी, right? Internet because of 4Gs, 5Gs, तब नहीं था, लेकिन सोच तो लिया था, right? कि लोगों को ऐसे जोड़ेंगे. आज पॉसिबल है because of technology, right? So ये सारी चीज़ें सोच के रखना है, कहीं लिख कर रखना है. ज़रूरी नहीं है कि अभी हो जाए, टाइम लगेगा, टाइम लगता है और लगेगा, ज़रूर लगेगा. तो नेक्स्ट कम्स सॉफ्ट स्किल्स आ गई, सोशल स्किल्स आ गई, विच आई डेवलप बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, एंड आई inculcated all this good practices in the community practices which we do in our events. I run large groups of community events, like 3-4 हज़ार लोग आते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर स्किल्स की ट्रेनिंग होती है. अगेन every month we meet, okay, and we develop these leadership skills which are very very important and which I realized people lack, you know, which cannot be taught in a school. They have to experience it, you know. Until and unless they stand on the podium without any hesitation in the safe space. I call it safe space because most of us as children and as youngsters growing, we never got that opportunity to hold this mic and speak up, right? So जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप स्टेज पे खड़े नहीं होंगे, कैसे डर जाएगा? नहीं जाएगा ना. तो we have this user groups called Python user groups, Linux user groups, open data groups, multiple technological groups. Even though they are technology groups, they are all meant for overall development of a human being. They are not only focused on technology. Technology is easy. That's what I always say in my public speeches. Technology is the easiest thing. Humans are difficult. To program humans is very, very, very difficult. Like, because it takes, because यहाँ पे yes or no नहीं है. Just like computers, you know, you have zeros and ones. Here we don't have that. There is a gray area. भाई ये ऐसे क्यों करा? नहीं पता मैं. जो वो moment ऐसा था. There are so many factors, you know, which we don't know. So I got so bored of all this technology and thing, to which I have long term imagined कि I will be doing this for the large masses. You know, in this journey, I started moving on with various user groups, various communities in the software development. Can you imagine, आज की डेट में all these softwares are helping
all the big corporates like Google, Microsoft, Facebook, Meta, everyone. और अगर आपने अभी अभी लेटेस्ट AI के बारे में सुना होगा, कितने लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं यहाँ पे? सारे करते हैं, राइट? तो उसमें भी पाइथन और ये सारी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट? वी कॉल इट, वी आर स्टैंडिंग ऑन shoulders of the people who have done good work for us, you know. We are standing on the shoulders of giants. किसी ने किया होगा ना, लिनक्स बनाया, फिर उसके बाद ओपन सोर्स आया, फिर उसके बाद पाइथन लैंग्वेज आई. पाइथन लैंग्वेज इज ऑल्सो ओपन सोर्स, राइट? So I'm not saying you learn everything, you know. Learn one thing at a time and learn it well. Especially people who are in software industry, I'll suggest one website, roadmap.sh, you know, note it down. If you have difficulty in choosing the path, you know, where to go, like, यार मुझे प्रोग्राम मैनेजर बनना है, ये बनना है, क्या पढ़ूँ मैं? ज़रूरी नहीं है कि हमसे सुन के पढ़ो. और इतनी नॉइज़ है कि यूट्यूब में सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, राइट? दे जस्ट वांट व्यूज़, राइट? रियल में सिखाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना? देखो उसमें भी अच्छे लोग हैं, ठीक है ना? वो तो फॉलो करो. नेक्स्ट कम्स, then came the big life lessons, you know, like क्या ज्ञान से पेट भर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि corporates do pay for skilled people, and this skill gap, especially in my industry, I found it, and I took the challenge of filling it up in whatever way possible in my own small resources. That is where I started coming across, you know, organizations like Sun Foundation. I collaborate with a lot of these kind of organizations. I collaborate with Government of India, SDC, everyone. But I am a very unique individual in my own self, right? I say this is what it is. This is how I can do, contribute to number of hours or whatever, you know, in whatever way. And especially when it comes to guidance and all, I am very well connected with everyone, with all the social media channels. You can always reach out to me, you know, and take help in any career guidance, helping yourself, finding it very difficult in writing resumes. Yeah, that is one big thing, you know. One of the things I found in when people, skilled people, right, they come to me with a resume.doc. Think about a person who is skimming through hundreds and thousands of resumes. How do I know ये resume.doc किसकी resume? वो उठा के सीधा कचरे में फेंक देगा, ठीक है ना? चैट जीपीटी सब यूज़ करो, लेकिन ध्यान से, बिकॉज दे ऑल्सो हेलुसिनेट. बहुत गलत इंफॉर्मेशन होती है, अभी भी उसमें है, तो ध्यान से यूज़ करो. लर्न, इवन लाइक आई से डोंट ट्राई टू एप, यू नो. एप इज़ गुड, लाइक कॉपिंग इज़ गुड, बट उसके लिए भी अकल चाहिए, राइट? यू हैव टू डिस्टिल दैट नॉलेज एंड प्रेजेंट इट इन योर ओन फॉर्म. इफ़ आई लुक एट ए चैट जीपीटी एंड योर वर्शन, आई कैन क्लियरली मेक आउट कि यार ये इस मतलब he doesn't have that vocabulary, he doesn't have this, right? Thinking about vocabulary, yes, if you want to come to, especially in software field, you have to have the habit of observing a lot of keywords. Keywords is very very important. Again, English is must, you know. अगर आपकी English ठीक नहीं है, please learn it from someone, or take help. Talking about help, everyone is there to help, but you have to ask, right? Right? So पूछना पड़ेगा आपको, कोई भी हो, with whom you can trust and get help. So talking about this, yeah, coming back to my point, you know, so I realized very soon, like, भूखे पेट राम भजन नहीं होगा. So we have to, on the one side, we are creating this very talented pool of individuals who are like associated with me, like from there. I'm talking about all the engineer graduates, huh? I'm not just talking about normal people. They are already studying their engineering. I call it educated and uneducated people, because they have no skill of how to survive in the corporate world. They don't have soft skills. They don't have those skills needed to get through the door in the corporate world. They don't know how to talk to their bosses. They don't know how to even resolve conflicts. You know, this is a very important skill. How to say no, right? How many people do that in real life? सबको मुंडी हिलाते हैं, yes, yes, yes. भाई आपको नहीं करना है तो मना कर दो सर प्लीज़. तो ये करते करते मुझे आज वेरी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द वर्ल्ड यूथ वी नीड टू फिल दिस गैप. ऑन द वन साइड वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस स्किल्स,
On the second side, on the second circle, we have to create jobs for them. That is where my other skill comes in, where I work with a lot of these startups. Startups are pretty much, बहुत ही forgiving है. They say, no degree, come in. You have skill, come in. I'm telling you, I have sat on the other side of the table. I have interviewed people who are nobody, just 10th pass and all, just because based on their skill. Very important. वो एक सॉफ्टवेयर जानता है, फ्रंट एंड जानता है, बैक एंड जानता है, कुछ जानता है, लेकिन वो अच्छे से जानता है. Because people, these days, software companies everywhere, they run like industry, software factories. People develop components, small components in pieces, and then they assemble it to a big software. And then they sell them, then they make money. So ठीक है, आप भी कर सकते हो, that is an entrepreneurial journey, but उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, system में रहना पड़ेगा, right? So that is where it is. So these skills again develop from being in the community. आप भी जुड़िए community के साथ. And I run also a very specialized not-for-profit organization known as AFROST, which actually helps. I just does not take much because मेरा bandwidth बहुत कम है. So I just handpick few people for leadership skills, especially in the software field, because that needs lot of time, and dedication and discipline. Okay. So talking about youth and you all, right? So one part, you have completed this training of people who are very well versed in the software field and they are ready to do. And these are the other fields which are like software companies and network of people and companies who are ready to hire people. As I'm talking right now, I'm finding it very difficult to find skilled manpower in cloud technology at the level of L1 and L2. L1 and L2 is really lowest level support kind of jobs. मुझे 30 लोग चाहिए अभी के अभी. I cannot find. So what we did was, one of the companies, they said, okay, let's invest some money, give them money to learn. ये कहीं सुना है आपने? ये भी हो रहा है. Because there are not skilled manpower enough. So jobs नहीं है बोलते हैं. I am telling you, there are so many jobs. With coming of AI, don't worry कि मेरे job चली जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, AI सब कुछ कर देगा. कोई कुछ नहीं करता. Humans ही करेंगे. And you have to focus on those jobs. Okay. This AI and everything is also built by someone like us only, right? Humans. हमने ही program किया, हमने ही cloud बनाया, हमने ही ये सब कुछ किया और ये चलता रहेगा. जब इंटरनेट आया था तभी भी ऐसे ही बोला. कंप्यूटर्स आए थे, मुझे याद है आज भी, बोलते थे कि सबकी जॉब चले जाएगी. आज देख रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड विच अर्न्स एवरीवन ए लाइवलीहुड. नाउ कम्स टू द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज. डोंट थिंक अबाउट कि मुझे इंडिया में ही या दिल्ली में ही कुछ करना है. कहीं पे भी जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जाना पड़ सकता है, जाना चाहिए, अच्छी बात है, बिकॉज उससे आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होगा. The more you interact with people, the more you learn about things, And there are a lot of jobs which are called remote jobs, especially in the software fields. You get to pay top dollars. You will not get overnight. कि हाँ वो सर इतना कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. अरे यार वहाँ पहुँचने के लिए कितना ब्लड स्वेट एंड मेहनत, वो आप किसी को नहीं दिखती है, राइट? इतना आसान है, राइट? So ये चीज़ें हैं. आई थिंक विद दिस टू सर्कल्स, वंस पीपल आर हैप्पी, मैं बोलता हूँ भूखे पेट राम भजन नहीं होता. वैसे ही जब तक जॉब नहीं मिलेगी, शांति उनती कुछ नहीं होने वाला दुनिया में. मतलब पीपल आर लाइक दे आर सो कन्फ्यूज्ड, राइट? कुछ भी करने रेडी जाते हैं डेस्परेशन में. आई हैव इंस्टेंसेस, आई हैव दोज few hundred students, out of which I can give you 1 or 2 stories, who literally was scamming people just to buy a mobile phone, things like that. गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं. उसको करेक्शन किया तो आज की डेट में बड़ा CTO बन के कहीं पे काम कर रहा है. सेम स्किल, सेम दिमाग, तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो उसको, राइट? सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे स्टेप्स करो. एंड स्पेशली इन सॉफ्टवेयर फील्ड और एनी फील्ड, ऑल फील्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. आई एम सीइंग सो मेनी न्यू जॉब्स आर कमिंग अप, लाइक ड्रोन के पायलट्स की ज़रूरत है. किसने सोचा, राइट? जैसे वीडियो गेम वाले वो लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है उसी का. वो करो,
और उसमें like there are so many things, you know, which are happening which we did not get as an opportunity, you know. So why I do this now, what is my passion, why I do is because we learned the hard way. Hard way मतलब बहुत ही मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई गाइडेंस वाला नहीं है, कोई नहीं है, मतलब धक्के खा खा के सीखे हैं, राइट. नाउ द वर्ल्ड इज़ ओपन, नॉलेज इज़ फ्री, यू नो. दुनिया में नॉलेज इंटरनेट पे आप जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे. इंस्टेड ऑफ देखना रील, ये बेकार की रीलें देखने से अच्छा आप ज्ञान के थोड़े यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो. ज्ञान का मतलब ये नहीं कि भक्ति एंड भजन. आजकल का ज्ञान जो है वो टेक्नोलॉजी का है देश है ना. एंड स्पेशली इंडिया में इतना यूथ है, वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, यू नो, वी आर, एंड वी हैव गॉट सो मच पोटेंशियल. आई डोंट वांट दिस टू गो वेस्ट, यू नो. कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप लोगों को, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन और एनी अदर सोशल मीडिया. आई एम ऑलवेज देयर, है ना. And that's all for my side for today. Thank you. थैंक यू सत्यकम सर फॉर द ब्यूटीफुल गाइडेंस. आपने जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें करी हैं वो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को बहुत पसंद आई होंगी, और कुछ ना कुछ 10% भी अगर हम लोग अपना लेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपको पहले मैं सन फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ. होपफुली आप सब लोग जानते होंगे सन फाउंडेशन क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है. बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होंगे जो सन फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते हैं. तो सन फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1998 में. आप में से कई लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे. तब से सन फाउंडेशन जो है वो सोशल वर्क में लगा हुआ है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, मिस्टर विक्रमजीत सिंह साहनी, द पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी. वही लगभग आपके 26 ईयर से ये सोशल वर्क कर रहे हैं. चाहे वो कोविड में एम्बुलेंस पहुंचाना हो, या बाहर जो विदेश में जो स्टूडेंट फंस जाते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन में वॉर हुई थी, तो वहाँ पे भी ये सारे सर जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं उनको वापस अपने देश पहुँचाने में, उनको कोई भी दिक्कत आती है. तो इस टाइप के सोशल वर्क जो हैं वो सर करते रहते हैं. आप अगर उनका इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी. और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है पंजाब की राज्यसभा से, और एंटरप्रेन्योर हैं. उनका बिजनेस है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का. एंड सोशल्स वर्क ये काफ़ी करते रहते हैं हमारे सर, जैसे कि सन फाउंडेशन है, ठीक है. सन फाउंडेशन का ही एक पार्ट है वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, जहाँ पे आप सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं. तो और जितने भी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये सारे बेनिफिशरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. चाहे कोई भी सोशल वर्क है, आप कोर्स से रिलेटेड बात कर लो, किसी को जैसे कभी फ्लड आई थी पंजाब में पटियाला में 2023 में, वहाँ पे भी जो भी रिलीफ वर्क किया गया था सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था. ऐसे दुनिया जहान के जितने भी सोशल वर्क हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, ठीक है. और ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं स्पेशली वो हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी चल रहे हैं. दिल्ली का स्किल डेवलपमेंट आप जानते ही हो, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर जो है. तो ये सन फाउंडेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रो था. और अभी सन फाउंडेशन की एक छोटी सी हम वीडियो प्ले करेंगे, 5-6 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है. तो ये आप वीडियो देखिए, ठीक है. ये कोर्स आपका आईटी का कोर्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स है. इसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, कोडिंग सिखाई जाती है, सी, जावा, पाइथन, जो सर अभी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, पाइथन में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्ड हुई हैं, ठीक है. चैट जीपीटी का भी पाइथन में काफ़ी रोल है. तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो है ये आपको जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स में सिखाई जाती हैं. और इसकी जो प्लेसमेंट जो होती है वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट इंटर्न, इसमें भी आपकी फील्ड, आपका जो करियर है आप अपना बना सकते हो. कमिंग टू द सेकेंड, वेब डेवलपर. ये सेकेंड कोर्स है हमारा वेब डेवलपर. ये भी अगेन आईटी का कोर्स है. इसमें आपको डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है. जो आप वेबसाइट्स देखते हो ना सुंदर सुंदर, जैसे सन फाउंडेशन की भी जो वेबसाइट है, या कोई भी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनका जो डिज़ाइन है जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका वेब डेवलपमेंट. जो आप डिज़ाइन करोगे, ऊपर मेन्यूज़ दिखते हैं, फिर कोर्स इमेज स्लाइडर आता है, ठीक है. सन फाउंडेशन की वेबसाइट अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं वो वेब डेवलपमेंट में आ जाती है. इसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, माई सीक्वल फॉर द सर्वर साइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वेब डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। कमिंग टू द थर्ड वन, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये भी आपका आईटी का ही कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको डेटा एंट्री सिखाई जाती है। बेसिकली डेटा एंट्री क्या होती है, आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, वहाँ पे एक क्लर्क बैठे होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, वो आपकी डिटेल लेता है फटाफट, और आप अपनी उसकी डिटेल को अपने सिस्टम में फिल करते हो और फिर उसको प्रिंट आउट वगैरह निकाल के देते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा, आपने सिर्फ अपना नंबर बताया उसको, आपकी डिटेल उसमें ऑलरेडी सेव्ड होती है। तो इस टाइप की चीज़ें कि आप डेटा को जितनी जल्दी एंटर करोगे सॉफ्टवेयर में, उसी फील्ड को हम बोलेंगे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। टाइपिंग इसमें काफ़ी मैटर करती है, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग मतलब ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने कीबोर्ड पे हाथ रखा तो आपकी उंगलियों में आंखें होनी चाहिए। आप नीचे देख देख के टाइप नहीं करोगे, आप सामने देख देख के टाइप करोगे। आपको पता है कि मैं ये उंगली से इधर करूँगा तो यहाँ पे के है, यहाँ पे वाई है। तो इस लेवल की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, तो आप अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी अपना करियर बना सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाता है, जो पोस्टर वगैरह, आपने यहाँ का भी जो पोस्टर देखा होगा, इनविटेशन था ना यहाँ का एक, तो वो भी आपका एक तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट आ जाता है कि कैसे पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करने हैं। कोरल ड्रॉ आप कैसे सीखोगे, फोटोशॉप हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है। और आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी बहुत डिमांड है, आप देख ही रहे हो, इतनी दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं। अब उसका भी थंबनेल बन रहा है, ठीक है, उसके एंट्री पार्ट अलग है, एंड स्क्रीन अलग है, वो सब कौन कर रहा है, वो सब एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बैठ के कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। ये काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है, अगर आप क्रिएटिव हो तो ये फील्ड आपके लिए है। क्रिएटिव प्लस कंप्यूटर की अगर आप में थोड़ी बहुत नॉलेज है सीखने की तो। फिफ्थ आ जाता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, GDA, एडवांस कोर्स है ये हमारा। इसमें आपको CPR सिखाया जाता है, ब्लड मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, पेशेंट केयर, ये सारी चीज़ें आपको GDA में सिखाई जाती हैं। इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो, जैसा कि आपको पता ही है कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किसी हॉस्पिटल में किसी के पेशेंट की केयर करना, उसका शुगर लेवल टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो GDA के अंदर में आ जाती हैं। और अगर आप इन सब से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, इन कामों से रिलेटेड, तो आप GDA में अपना करियर बना सकते हो। सिक्स्थ आ जाता है इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर भी अगेन बहुत डिमांड में है आजकल। हम लोग कितने कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, दिल्ली इतना छोटा सा है और इतने घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। अब जो इतने घर बिल्डिंग बन रहे हैं, अब क्या होगा, सबसे पहले एक इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्चर आपका मैप रेडी करेगा, ठीक है। तो इसकी भी कितनी डिमांड है, ठीक है। एज़ पर दी वास्तु, कहाँ पे किचन होनी चाहिए, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ से जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाती है। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी आपको इंटीरियर डिज़ाइनर में सिखाया जाता है। एडवांस कोर्स है ये भी। ऑटोकैड अब बाहर से सीखने जाओगे तो करीब 50 से 60 हज़ार रुपये आपके आराम से लग ही जाएंगे, सारे कोर्स में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। सेवन्थ आ जाता है ABT, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। वैसे तो ये कोर्स मेरे को बहुत खतरनाक लगता है क्योंकि इनपुट कुछ जाता है, आउटपुट कुछ आता है, तो इस चक्कर में कई बार लड़के जो हैं वो धोखा भी खा जाते हैं बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छा कोर्स है ये भी हमारा। आप खुद ही देख सकते हो। जो आप अगर बाल कटवाने जाओगे, हल्का सा लेंथ की भी अगर कटिंग कराने जाएगा ना कोई ब्यूटी पार्लर में, उसको भी 400-500 रुपये ले लेंगे आराम से। तो आप इस टाइप की चीज़ें जो है वो ब्यूटी थेरेपिस्ट के कोर्स में सीख सकते हो। पेडिक्योर, मैनिक्योर, और जो ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, इसके बारे में बात नहीं करूँगा ठीक है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनिंग में भी स्टिचिंग वगैरह, ये जो कपड़ों के डिज़ाइंस वगैरह होते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे स्टिचिंग होती है, ये भी अगेन वुमेन स्पेसिफिक ही है, ठीक है। इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा मैं क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पे आ जाता है SPIT, जिसे हम कहते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। अब ये इतना डिमांड में क्यों है? आज से 5-7 साल पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था सोलर पैनल के बारे में, हमें नाम भी नहीं पता होगा कि सोलर पैनल नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट इतनी जल्दी ये चीज़ कैसे ग्रो हुई है, कैसे ये मार्केट बूम हुई है, कोई बता सकता है? इंडिया जो है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो सोलर एनर्जी का हब क्यों है? बता सकता है कोई? सोलर पैनल वाले तो बता ही सकते हैं भाई, क्यों है इंडिया सोलर एनर्जी का हब, क्यों है, क्यों माना जाता है? कोई एक बताओ, तुम्हें तो पता होना चाहिए भाई, अभी कभी कोर्स शुरू हुआ है क्या? चलो मैं बता देता हूँ।
तो इंडिया जो है वो सोलर का हब इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे या गूगल अर्थ खोल के देखोगे, हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एक लाइन पास होती है। उससे क्या होता है, हमारे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, और आप किसी और देश में जाओगे उन देशों में सूरज की किरणें इतनी नहीं पड़ती जितनी इंडिया में पड़ती है। तो इस वजह से सोलर का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है। अब धीरे धीरे हम सोलर की जो किरणें होती हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो किसकी मदद से हो रहा है, वो हो रहा है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की मदद से। ठीक है, तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। एक आ जाता है आपका फील्ड इंजीनियर RACW। फील्ड इंजीनियर आपका ये 10th कोर्स है। ठीक है, RACW मतलब रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन। आप इससे रिलेटेड आप समझ ही गए हो, इन तीनों के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप जानोगे, इनको रिपेयर करना जानोगे, इसको इंस्टॉल करना आप जानोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये RACW फील्ड इंजीनियर में आपको सिखाई जाती हैं। और ये सारे 10 के 10 कोर्सेज आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और 6 मंथ्स के हैं। ठीक है, और ये सब कोर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे जो भी हमारे साथ सेंटर में अभी पढ़ रहा है। अब मैं आपको 2 कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि हम आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। हमारे सेंटर में अब 2 कोर्स और ऐड हो जाएंगे। पहले 10 चलते थे, अब 12 कोर्स हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे 2 कोर्स हैं, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट फैसिलिटेटर एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट। इसमें ये जो पहला कोर्स है आपका, ये है बिजनेस बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि बैंकिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है, KYC कैसे होती है, कैसे आप सॉफ्टवेयर में वो डेटा को इनपुट कराओगे, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट फैसिलिटेटर। एक और कोर्स हमारा ऐड हुआ है, ये कोर्स तो हमारा ऑलरेडी अभी रन भी हो रहा है। ठीक है, अभी न्यू एडमिशन्स भी इसके चालू हैं। ये वाला कोर्स बिल्कुल न्यू है, फूड एंड बेवरेज सर्विस एसोसिएट। नाम से ही पता चल रहा है अगेन, ये भी फूड एंड बेवरेज, जो होटल इंडस्ट्री होती है। ठीक है, वो ढाबों वाले की बात नहीं कर रहा सलाम साहब, ठीक है, वो वाली बात नहीं कर रहा। जो प्रोफेशनल 5 स्टार होटल्स, हमारे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जैसे होटल द ललित, रेडिसन ब्लू, इनमें हम ऑलरेडी हमारे जो लोग हैं वो हायर हुए हैं, हमारे जो ट्रेनीज हैं वो हायर हुए हैं। तो अगर ये कोर्स भी हमारा अब ऐड हो जाएगा तो आप ऐसे 5 स्टार होटल्स में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, फूड एंड बेवरेज, इसमें आपको वही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे कस्टमर्स को ट्रीट करना है, फूड के बारे में सिखाया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो ये टोटल 12 कोर्स अब आज से हमारे फाइनली हमारे इंस्टीट्यूट में 10 तो ऑलरेडी रन हो रहे हैं, ये 2 भी अब हमारे न्यू एडिशन है हमारे वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में। तो एक बार अपने नाम पे ताड़ियां मार दो सारे। चलिए, तो अभी कुछ ही टाइम में सानी सर आने वाले हैं। ठीक है, उनकी फ़्लाइट अभी लैंड हो गई होगी, तो अभी कुछ ही देर में वो आप सबके बीच में मौजूद होंगे। एंड अब आपको एड्रेस करेंगी मिस सीरत ओरी मैम। थैंक यू। थैंक यू भूपिंदर। सो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे हम एफिलिएटेड हैं, कैसे आपकी एग्जामिनेशन होएगी, आपको सेंटर पे क्या पंक्चुअलिटी करनी है, क्योंकि अभी आप हमारे न्यू जॉइनीज़ हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप एक वीडियो देखिए, AV जो भूपिंदर आपको बता के गए उसी के बारे में वो सब है। आज से हम वो कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, ईच वन स्किल वन। जब आप सारे कोर्सेज के बारे में और बेहतर जानेंगे तो आपके और लोगों को भी बेहतर बता पाएंगे। Please maintain silence and everyone please be seated. A big round of applause for sir. I'd like to thank sir and ma'am for joining us.
As you all are aware that we are here for celebrating World Youth Skill Day. All our centers are also connected with us via Zoom call. So I'd like to call upon State Sir for the further closing down of the ceremony. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, all the staff members of Mata Sundari College. Thank you, students. Thank you, everyone. Thank you, our students, for making this event a wonderful event and celebrating it. I'll just like to share about Sir. A self-made man and a true visionary, Dr. Vikramjit Singh Sani is a multifaceted personality playing many roles with panache. Reputed entrepreneur, philanthropist, educationist, and a social activist. He's a force behind all this show. Whatever we are doing today is just possible because of him. All you are being trained, all the skills which are imparted to you is only and only possible because of him. So, sir, on today's day, I will like to give you a title or whatever you can call it from our side, the Skill Man of India. Please welcome on stage the Skill Man of India who has done so much for everyone. And every 6 months, we are churning out more than 1,000 students and placing them and giving them a lovely livelihood ahead. Thank you, sir. Thank you so much. It means a lot. Despite your all hectic schedule, still you took out time for us. It means a lot. Thank you so much, sir. The director of the World Skill Center of Excellence, Madam Seerath, Madam Mrs. Harpreet Kaur, the principal of Mata Sundari College for Women here, and the staff, faculty of the college and World Class Skill Center, and above all, my all dear students. Jai Hind. Today is a very special occasion. It's a World Skills Day. And under the guidance of our Honorable Minister, Shri Jayant Chaudhary ji, who has just taken over Minister of Skills, and my friend Mr. Atul Tiwari, Secretary Skills, Ministry of Skill Development and Education, and NSDC, headed by Mr. Vedmani Tiwari, of which I was the board member for over 8 years. I extend you a very hearty welcome. As Alexander the Great said, without the knowledge, skill cannot be focused, and without skill, strength cannot be brought to bear, and without strength, knowledge may not be applied. And you all know how skills is very, very essential in the present scenario. Even, in fact, I'm coming from Mumbai, and I was reading this morning that 36% of the IITians in Mumbai didn't get placements. When this is the scenario that even a IIT degree or a MBA degree or whatever degree does not guarantee you a job, but the skill acquisition, once you are skilled, like you people are getting skill training, and that also from our NGO free of charge, we don't take even 1 paisa from anyone. And it is my passion. You should be thankful to God that God has blessed you, blessed us to serve you, and blessed you to be part of the Sun family and getting this skill in a very conducive environment, in a 5-star environment, excellence environment. I'm grateful to support by Ministry of Skill Development, NSDC, and Delhi government, the Department of Training, and also the University of Skills and Entrepreneurship, Delhi, headed by Mrs. Niharika Vora. Today, it is not just a day, it is a reminder of power of skills in transforming lives, communities, and entire nations. In next 1 decade, all of you know, I was also reading in the flight, the AI, how AI is going to impact the job scenarios. So we have to gear for that. I'm happy that our skill center is adopting to AI courses, IT courses, graphic designing, apart from other
soft courses. And we are continuously now planning to introduce the courses like drone training and solar panel technician is already there. All these new gen skill courses which are very, very important. The above, this all kind of figures require India future lies in skilling, and skilling are the engines of development to unlock opportunities, breaking the, of course, chains of poverty, because once you are empowered, then your family gets empowered, and these days, or any number of times, the job is very important. I had interacted with you on our annual day, 20th February of this year, where I had shared with you that I stand here and I was also looking for a job 35 years back. For 1.5 years, I used to take my scooter or whatever and go around with my CV. Somebody used to say, you are gold medalist, you are very well qualified, maybe overqualified for us. Somebody said, go there, go here. Somebody will not meet me. I will not name the employers who will make me sit for hours, and I used to come back. So here is a case study before you. So if you work hard, I'm also first generation entrepreneur. From job only, I did a government job for 8 years. But any type of skills and your hard work, perseverance, your sustainability, your focus, and above all, self-confidence, motivation. Never lose your self-confidence. You should say, yes, I can do it. I would like to conclude by stating that World Youth Skills Day is a celebration of hope, a promise, the boundless potential of our youth. It is a day to reaffirm our commitment to nurturing and empowering us. Today we can build a future where every young person has the skills, confidence and opportunity to thrive. जो आज का दिन है वो मनाने का यही पर्व है, इसका यही पर्पस है कि आपको पता लगे कि मेरा हुनर मेरी शान. सब बोलिए, मेरा हुनर. So skill, once you are skilled, and we are apart from your 4 months, 5-6 months course, our institute here, and I'm happy that all our multi-skill development centers in Punjab and other places are also connected live. We have a big center in Amritsar, as big as this. Last year, we placed 1,475 students in our Amritsar center. Please put hands together for them. And of course, with the help of, under the guidance of Ms. Seerath and other faculty, our CEO Gurbir ji, Shalinder ji, everybody is working very hard. We have placed over 1,200 students in our Delhi center. You will be happy to note that it's my dream to open the world-class skill center in each district of Punjab and in northern India. 5 centers will come up this year. The prominent centers coming up are at Ludhiana, Patiala and Jalandhar. I would like to conclude, because you have been here since morning. I will congratulate the passing out students, and we are helping you with all the placements, but stay connected with World Skill Center and Sun Foundation, which has nurtured you, which has given you an opportunity to give a dynamic display of your hidden talents, which has brought out the real personality in you. Don't forget, stay connected as our alumni and the fresher batch which is coming today. I wish them good luck. Jai Hind. But before going, we will say, Inqilab, Inqilab, Inqilab. So we can bring Inqilab only by educating, empowering ourselves, and empowering and educating. The best way to empower and educating is skills for jobs. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you for these golden words. In the last, I want you also to shout out for you, hip hip,
Hip hip. Hip hip. Thank you so much, all of you, for joining in for the event.